बीच में क्यों घुसते हैं? सभी यहाँ से चल रही है, बीच में घुस जाते हैं। निरीक्षण की अनुमति लेने हेतु परेड समादेशक मंच की ओर अग्रसर। हाजिर है। हट जाइए वहाँ से। पुलिस महानिदेशक बिहार श्री आर.एस. भट्टी परेड के निरीक्षण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि मंच की ओर आते हुए पूछेगा आप लोग पीछे आइए थोड़ा। यही सब ठीक रहेगा, इसमें ये आ जाता है, ये आ जाता है। ऐसे क्यों कर रहे हैं बीच में आप लोग? परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमरांव। द्वितीय परेड निरीक्षक सशस्त्र हरदेव पंडित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5। दादा दादा अभी हटा देंगे। सभी प्लाटून मंच की ओर आते हुए नहीं सुनता सर, थोड़ा कम सुन रहा हूँ। माइक को आप रख दीजिए। हाँ, माइक लो।
प्लेटून नंबर 6 दिनेश कुमार, प्लेटून नंबर 7 के नेतृत्वकर्ता दिलीप राम एवं प्लेटून नंबर 8 नेतृत्वकर्ता अनीसा नकी इमाम खान B7 10। गहनों में भी खा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पद पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ पर जाते वीर अमीर। A very good evening to all of you. It is indeed a pleasure and honor for all of us to organize this farewell parade in the honor of outgoing Director General of Police, Bihar, Shri R.S. Bhatti. It is a magnificent moment for Bihar Police. To mark this august occasion, a ceremonial parade has been organized. Shri R.S. Bhatti is an officer of the Indian Police Service of 1990 batch, born on Bihar Kadar. He holds a degree in Chartered Accountancy and an MPhil in Defense and Strategic Studies. He has received training from National Defence College, New Delhi, and the Australia-New Zealand School of Government. He is a recipient of the Police Medal for in a career spanning over 3 decades. He has served for nearly 15 years in the state of Bihar and also in the CBI, BSF and AEI. He is serving as Director General of Police Bihar since 19th December 2022. Ladies and gentlemen, let me tell you that he is while being posted as DGP here, he has served as Superintendent of Police in the districts of Patna City, Purnia, Madhubani, Gopalganj, Jahanabad and Bokaro. Intelligence and vigilance
CBI and posted as SP Sivan, where he arrested hadi kaya. he was posted as SP Sivan, where he arrested the notorious criminal Mohammad Shahabuddin from Delhi. He received commendation from the Election Commission of India for this. As Director General Bihar Military Police in 2021, he was instrumental in the enactment of the Bihar Special Armed Police Act 2021. During his tenure in the CBI, he made outstanding contribution in several areas. He led the Special Crimes and Bank Frauds Investigation Zones of the CBI. As Joint Director Policy, CBI, he supervised the internal vigilance and intelligence setup of CBI interface with other agencies. He played a key role in setting up of the Sport Integrity Unit of CBI in 2014, which is tasked with the investigation of sports fraud, match fixing and doping in sports. He has represented the country at the OECD conference. He has served as member CII National Task Force on Integrity and Transparency in Governance. As Additional Director General BSF, he led the Special Ops Command at Raipur, focusing on anti-Naxal operations in Chhattisgarh and Orissa. He took over as head of the prestigious Eastern Command BSF in July 2022. December 19, 2022 is a landmark day for Bihar Police. In the last 20 months, Sir has introduced wide-ranging reforms to make police people-friendly, with a response time of 20 minutes to any emergency. People-centric social media presence with a following of 1.2 million. He has undertaken large-scale capacity building in the traffic, training, empowerment of women police personnel and forensics in investigation. He has taken several initiatives to lay the foundation for digital policing, under which data centers have been set up in all police stations. A new law called Bihar Control of Crimes Act 2024 has been enacted to check the activities of land and sand mafia and professional criminals. Building public trust through people-centric policing was the cornerstone of his policing in Bihar. Sir, your achievements make it difficult to be enumerated at one place in a limited time frame. महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से कि वह कृपया मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि के स्वागतार्थ संबोधन एवं स्वागत भाषण दें। श्री अम्बेडकर।
आज के विदाई परेड समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री आर.एस. भट्टी सर, मौके पर उपस्थित डीजी होमगार्ड शोभा होमकर मैम, श्री विनय कुमार जी, पुलिस महानिदेशक पुलिस निर्माण निगम, वरीय पदाधिकारीगण, आईजी सीआरपीएफ, यहाँ पे उपस्थित शक्ति स्वरूपा लेडीज वाइफ, परेड में सम्मिलित हो रहे सभी नौजवान पुलिसकर्मी दोस्तों, आज इस विदाई समारोह परेड में उपस्थित कवर करने आए हमारे प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया के दोस्तों, आप सबों को मैं स्वागत करता हूं इस विशाल परेड ग्राउंड में। माननीय श्री भट्टी साहब लगभग 2.25 वर्ष यहाँ के बिहार पुलिस के मुखिया के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं और इसके पश्चात केंद्र सरकार में सीएसएफ के डीजी के पद पर योगदान करने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में यह विशेष परेड का आयोजन किया गया है। आप लोग सब लोग उपस्थित हैं। मैं सबको, मैं एक अम्बेडकर डीजीपी सर, सबको इस प्रांगण में आप आभार व्यक्त करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मुख्य अतिथि श्री आर.एस. भट्टी से अनुरोध करूंगी कि वह कृपया मंच पर आए और अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। अरे यार, आज के समारोह में उपस्थित डायरेक्टर जनरल राष्ट्र का नाम डायरेक्टर जनरल बिहार होमगार्ड नारायण शोभा होमकर, श्री विनय कुमार CMD पुलिस दिल्ली, बिहार पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी, CID और रिस्पेक्टेड गेस्ट और बिहार पुलिस के सभी साथियों और मीडिया के बंधुओं, इस अवसर पर मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए। दो बातें ध्यान में आती हैं। बिहार में जब मेरा कार्डर अलॉटमेंट हुआ था तो मेरा पहला बिहार का अनुभव थाना बीरपुर, जो आज का नौलखिया जिला है, वहाँ से शुरू हुआ। बिहार में मैं एक आदमी को नहीं जानता था और बिहार में कभी आया भी नहीं, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो मैंने ये पाया कि बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता है। एक तो जो यहाँ का आम जन है, नागरिक है, वासी है, उसको अच्छाई और अच्छे व्यक्ति की परख है और वो उसको देखता है, समझता है और उसको सपोर्ट करता है। और यही हमारी फोर्स की भी खूबी है। जब मैं थाना बीरपुर गया था तो मेरे साथ, मैं भी प्रोबेशनर था, मेरे साथ 3 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर थे। एक मुंशी था थाना में
और एक चौकीदार। हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी, और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहारी की है, और मैंने सारी वो बुनियादी सोच समझ विभिन्न जगहों पे बाद में सर्व किया, लेकिन ग्रहण यहीं से किया। और उसी सोच के साथ बाद में ये यात्रा में मुझे सीबीआई जाने का अवसर मिला, लेकिन जो सोच और समझ और जो जमीनी परख, वो मुझे बिहार और बिहार पुलिस में ही थी। और मेरा हमेशा बिहार पुलिस से और बिहार से स्नेह बना रहेगा। और मैं जब भी केंद्र में भी गया, हमेशा बिहार और बिहार पुलिस को के पक्ष में खड़ा हुआ, जहाँ भी मुझे अवसर मिला कुछ कहने का। और ये यहाँ के लोगों की, बिहार पुलिस फोर्स की जो उसने मुझे दिया, ये उसके कारण। तो मुझे यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में करीब 2.25 साल का अवसर मिला, और इस सारे अवसर में मेरे केंद्र बिंदु की काम के लोग ही थे, आम नागरिक और बिहार पुलिस के जवान। जब मैं बिहार पुलिस बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए बिहार पुलिस का जवान, लास्ट में वरीय प्रधान। और मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बना के जो भी काम करने का प्रयास किया, उस बातों का उल्लेख उन्होंने किया, वो सब आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये मेरी बुनियादी समझ यही है कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। हमने जो भी काम करने का प्रयास किया, अगर उसको आप समझेंगे पूरी अच्छे से, तो उसमें आपको दिखेगा